Remember us that we are a free country and no country can rule us. This day came after very long struggle. Many people have died and many people were struggled for this day. So we all are very lucky to walk in such a country which are free. So एक बार आप जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की। ओके, तो मैं तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में, रिपब्लिक के बारे में क्लास में बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज कुछ स्टूडेंट अपने स्पीच के माध्यम से अपने पॉइंट के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्लास 1 की अफलक नजर और ग्रुप आएंगी और आपको एक प्यारा सा पॉइंट सुनाएंगी। प्लीज अफलक नजर। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस बच्चों के द्वारा जिन्होंने यूनिटी ऑफ पीस का मैसेज दिया। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट ऑरेटर स्पीच देने आए
वो है क्लास 10 के अभिनव मौर्य। क्लास 10 के अभिनव मौर्य साइलेंट रहे। Hello. Hello. Good morning, everyone. As I am an apprentice from Standard 10, so at first we all are gathered here to celebrate our first Republic Day after completing our time of Jubilee. Means we are celebrating currently our 77th Independence Day. So I am here. For what I am here? I am here to talk at why do we celebrate this Independence Day. Okay, as we all know that our Indian freedom struggle started in 1857, and since then we are practicing for 90 years to get our independence in our pocket. But as we all know that India is a highly diverse country and consists of many religions, so it is much necessary for our country to get unified into a constitution so that it will be ruled uniformly and do not get suffer from any conflict. Therefore, we started struggling from making constitution, and we completed it in a lot of period, and it was completed on November 26th in 1929. But let's get a little back in history. As we know that in 1929 there was a offer for dominion status to our country, which was partially accepted by our Mahatma Gandhi or Nationalist Party. But as it was opposed by Pandit Jawaharlal Nehru, therefore they demanded for total republic in December 29 and celebrated Republic Day on Independence Day on January 26 in 1930. But as traditionally our India got independent on 1947, and we celebrated, as we preserved that day. In order to preserve that day, as we now know, the constitution was become prepared on November 26, 1939. We delayed the ceremony of constitution implementation 2 months later, and on January 26, we implanted it and celebrate our day as Republic Day. That's all. Thank you. In last, I would still like to say some words like. As we know, India is a country of diversity, which is bonded with bonds of love and affection. So therefore, we initiate this Republic Day with bonding yourself with other peoples. That's all. वालों को याद दिलाने आया है, हर भारतीयों को अपना फर्ज निभाने आया है। गणतंत्र दिवस का ये शुभ अवसर एकता का संदेश फैलाने आया है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहता हूं, वंश कुमार फ्रॉम क्लास 5। हे भारत के राम, हे भारत के राम, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म है एक बलिदान, मैं तुम्हें बताने
बलिदानों का सपना जब सच हुआ तब देश आजाद हुआ। आज सलाम करो उन वीरों को जिनकी बदौलत से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। दिलों में नफरत है निकालो इसे, दिलों में नफरत है निकालो इसे, और दिलों में खाली से भी निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत। आप ही देश के भविष्य और आपको इस देश को संभालना है। इसी के साथ जो नेक्स्ट परफॉर्मर आने वाले हैं अनूप कुमार फ्रॉम क्लास 6। सुप्रभात। मैं कक्षा 6 का छात्र अनूप कुमार गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सबों को कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन हमारे देश में पूरी जगह झंडा तोलन होता है और सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रपति लाल किला पर झंडा तोलन करते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिर भी हम लोग 1950 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी में 12 बजे रात्रि के जावी नदी के तट पे लाहौर में स्थित बोला है पहली बार झंडा फहराया था और बोला था कि हम लोग आज इसी दिन से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें तो पढ़ाया गया कि जब विश्व आजादी आई है तो 25-25 साल में फांसी चढ़ने वाले वे नौजवान कौन थे? वे रस्सी आठवीं संग्रहालय में है जिससे गांधी जी अपनी बकरियां बांधा करते थे। वे रस्सी 8वीं संग्रहालय में है जिससे गांधी जी अपनी बकरियां बांधा करते थे। परंतु वे रस्सी कहाँ जिसपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे, हंसते हंसते झूले थे। हालांकि मुल्क देख के रोया न गया, हालांकि मुल्क देख के रोया न गया। कोशिश तो की और मुंह ढक के सोया न गया, कोशिश तो की और मुंह ढक के सोया न गया। न जाने कितने झूले फांसी पे कितनों ने गोली खाई थी, न जाने कितने झूले फांसी पे कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चढ़ के से आजादी आई थी? चरखा आदम खामोश रहा, अंत देश को बांट दिया। चरखा आदम खामोश रहा, अंत देश को बांट दिया। लाखों बेघर लाखों मर गए जब गांधी ने बंदर बांट दिया, जब गांधी ने बंदर बांट दिया। इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकी बताया था, इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकी बताया था। रोया उसकी ललपेट पा करके पत्ता थरथराया था। जो देश के लिए जी मरे और फांसी के फंदे पे झूल गए, जो देश के लिए जी मरे फांसी के फंदे पे झूल गए। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चढ़ के से आजादी आई है? आप लोग 76 गणतंत्र दिवस के हार्दिक पुनः धन्यवाद। ओके, आज के लास्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा क्लास 6 के सुशांत आर्यन। क्लास 6 के सुशांत आर्यन प्लीज कम। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य अध्यक्ष महोदय के कोमल चरणों में मैं प्रातः वंदना करता हूँ। मैं कक्षा 6वीं का छात्र सुशांत आर्यन हूँ। आज का मेरा प्रसंग है गणतंत्र दिवस। जैसा आज मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गणतंत्र का मतलब होता है वह देश जहाँ सत्ता की जनता होती है। आज हम लोग इस दिन उस ऐतिहासिक दिन के याद में एकत्रित हुए हैं जब 26 जनवरी 1950 वही दिन था जब हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया था। एवं 26 जनवरी 1950 से ही हम अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। 2025 26 जनवरी हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। हम भारतवासी कहने लगे कि अब हमारा भी कानून और संविधान है। आइए गणतंत्र दिवस के दिन शुभ अवसर पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि धन्यवाद। जय
ओके, साइलेंट प्लीज, साइलेंट। आप लोग बात सुने, आपस में बात ना करें। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा स्कूल मैनेजमेंट जो है बच्चों के मेहनत को हमेशा से इंकरेज करता आया है, चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से हो, पेंटिंग कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन, या फिर जो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है बच्चों का उस दौरान। आज जो है बच्चों को जो 31 दिसंबर को जो प्रोग्राम हुआ था, आप लोगों को याद है ना, उसमें जो बच्चों ने मेहनत किया था और अपने परफॉर्मेंस से शाम को और भी बेहतरीन बना दिया था, उनको आज स्कूल के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें ड्रामा करने वालों में अनूप एंड ग्रुप प्लीज कम ऑन स्टेज। जो भी थे, जो सोशल मीडिया जितेंद्र सर ब्लूटूथ बंद करिए अपना। जितेंद्र सर ब्लूटूथ बंद करिए अपना। सीधे ना ब्लूटूथ बंद करिए, ठीक है। आप चलो सर। जिसमें बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस किया था वो था डांस। डांस तो कई सारे लाजवाब थे, लेकिन प्राइज तो एक ही को मिलना है और उसकी विनर है काव्या कुमारी। काव्या आप लोग खड़े हो जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। इस वीक जो है स्कूल में ऐसे कंपटीशन हुआ था जो कि हर वीक होता है 8, 9 और 10 का। इस बार के विनर जो है, मैंने तो पहली बार इनका नाम देखा, इनके मेहनत ने रंग लाया। जो टॉप 3 में है, जो 3 नंबर पे थे वो थे पवन सूद कुमार क्लास 10 के। क्लास 2 रैंक 2 पे थी पम्मी पटेल और इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन के विनर है आदित्य नारायण सिंह। आदित्य नारायण सिंह चलिए आप तो खड़े हो जाइए।
जोर से और दिल से मेरे साथ नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो आप लोग बात सुने, केप साइलेंट रहे। एक बात कि मैं दिमाग में नहीं दिल में भर दूंगा, इतनी बार बोलूंगा। आप क्लास में जाके पढ़ते हैं, पहला डिसिप्लिन कीप साइलेंट, शिक्षक की बातों को सुनना। और यहां भी अगर कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो कीप साइलेंट, आप सुने बातों को। यहां मौजूद सभा में हमारे प्रिय शिक्षक और आप सभी मेरे अनमोल रतन, आप मेरे जीवन के उद्देश्य हैं। आप समझ जाएं आप मेरे लिए कितने वैल्यूएबल हैं। मेरे टारगेट को पूरा आप ही करेंगे। आप मेरे सेना हैं। कहते हैं ना, सेना मजबूत होगी तभी तो जंग जीतेंगे। और आप सब बात ध्यान से समझें। 26 जनवरी हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने देश में, सबसे बड़ा जनसंख्या में, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा डाइवर्सिटी, तो फिर सबसे ज्यादा नोबेल जीतने वाले हम क्यों नहीं हो सकते हैं? नोबेल जीतने वाले गिने चुने, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, वो भी हम सबसे ज्यादा होंगे। जो उंगलियों पे नहीं गिना जाएगा वो संख्या हमारी होनी चाहिए। आज जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है, आज 26 जनवरी है, गांधी जयंती, तो हम लोगों के अंदर देश भावना की बातें याद आने लगता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यह हर दिन क्यों नहीं होता है। प्रत्येक दिन अपने अंदर में जलन होना चाहिए। आप जान जाएं, राजनेता अपने जगह पे देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सेना के लोग, आप बताएं, जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बाकी चीजों में हम कैसे पीछे रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप इस उद्देश्य के साथ और इस संकल्प के साथ काम करें। आप देखें आपकी प्रगति कैसे होती है, आप कैसे अपने अचीवमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन संकल्प तो लेना पड़ेगा। और तुम्हारे संकल्प आज लेते हो, कल भूल जाते हो, उसको संकल्प थोड़ी कहते हैं। तो जो चीज मैं तो पढ़ाता हूं, मैं बता दूं, तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मेरे अंदर भी, मैं भी एक देश की सेवा कर रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में, कि कैसे आपको उस लेवल का शिक्षा दिया जाए जो विदेशों में शिक्षा दिया जा रहा है, और वहां के बच्चे नोबेल जीत रहे हैं या और भी प्राइजें जीत रहे हैं। हमारे बच्चे जीतेंगे, हमारे देश के बच्चे जीतेंगे। वहां पर जाकर हम उनको बीट करेंगे। तो जब तक मैं अपनी एजुकेशन, उनकी एजुकेशन से आगे नहीं रखूंगा, वो मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होना चाहिए कि आप शिक्षक की बातों को सुने और जो कहा जा रहा है उसको पूरा करें। हम लोग कहते हैं, आप हमेशा, मैं देखता हूं तुम स्टूडेंट लोग हमेशा एक गाना गाते रहते हो और गा करके अपनी भावना को बताते हो। सुनो गौर से दुनिया वालों, सिर्फ गाओगे, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, बेशक होंगे, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, करने से। कहा जाता ना कि आप वो संकल्प और वो उद्देश्य के साथ करें। बड़ा शर्म आता है कभी कभी, मैं बता दूं, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन किसी को दावत देना पड़ेगा क्या कि इधर बोलना है? 15 अगस्त 26 जनवरी को किसी को दावत देना पड़ेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैं सबको बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट हो या टीचर, सबको। होली के दिन तुम घूम रहे हो तो तुमको
बोलना पड़ेगा कि पॉकेट में गुलाल रखो। होली का मतलब है गुलाल। अब तुमको बोलना पड़ेगा कि पॉकेट में गुलाल लेके घूमना, आज होली है। चंद बच्चे आकर के बोले, बाकी क्या कहेंगे मुझे पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? आपको अपने अंदर की भावना बोलना चाहिए, आपको भी अपने हिसाब से मोटिवेट करना चाहिए। इतना बड़ा संविधान, आप सोचो कि कितना बड़ा एजुकेशन का क्वालिटी होगा लिखने वाले का। महापुरुषों ने बनाया है, उसको हमेशा लेके चले। मैं बता दूं, अगर मैं महापुरुष की बात करूं तो कॉपी पे लिखना पड़ेगा, इतने महापुरुष हमारे देश में बने। अगर मैं वीर जवानों की बात बोलूं, शहीदों की बात बोलूं, तो कॉपी पे लिखना पड़ेगा, उंगली पे नहीं गिन पाओगे, इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन साइंटिस्ट की बात करूं, रिसर्च की बात करूं, तो चुंद उंगलियों पे नाम बता दोगे। वहां भी हमारी यही संख्या होना चाहिए। आप एक छात्र हैं और इस उद्देश्य के साथ, ये कोई 4 दिन और 10 दिन की कहानी नहीं है कि आप पूरा कर लोगे, अभी से काम करोगे तब जाकर के एक दिन अपने देश में इतने ज्यादा साइंटिस्ट, इतने ज्यादा रिसर्च वाले हो जाएंगे, जो उसी तरह आप अपने कॉपियों पर लिखोगे, उंगली पे नहीं गिन पाओगे। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। बाकी तो आप मेरी नजर में जीनियस हैं, आपके जीनियस में कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूं। बस थोड़ा सा डाइवर्ट मोबाइल आपको कर देता है, और मैं जानता हूं कि आप मेरे कहने के अनुसार मोबाइल को छोड़ ही देंगे। और एक और अजीब बात है, मैं क्या बताऊं, हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके घर में एंड्रॉयड एक को नहीं है, 2 को 3 को है। किसी के घर में चले जाओ गांव में तो एंड्रॉयड फोन नहीं है, पर तुम लोग यहाँ 2 नहीं 3 4 को रखा है। ये नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा। पापा नहीं तो मम्मी का लेकर के काम कर लेंगे। मत करें। अगर अपने देश का भलाई चाहते हैं, अगर अपने देश को कुछ देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दूर हो जाए। और मैं जानता हूं तुम में से 90% मोबाइल से ग्रसित हो, बीमार हो, मोबाइल ने तुम्हें बीमार कर दिया है। इस बीमारी से निकलो और एक बार झांक करके देखो, तुम्हारे सामने बिहार राज्य टॉपर 2 स्टूडेंट, क्या ये दोनों बच्चे मोबाइल चलाते हैं? तुम सोचो, ये दोनों बच्चे हॉस्टल के हैं, कोई मोबाइल नहीं चलाते, और जो मोबाइल चलाता है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी नहीं है। अब इससे बड़ा उदाहरण तुम्हें क्या चाहिए? और एक बात जान जाए कि पहले आप परीक्षा में अगर 90% लाते हैं और बड़ी खुशी होता है कि मैं 90% ला दिया, 1 नंबर हूं अपने क्लास में, और स्टेट टॉपर ही है, उससे नीचे नहीं है। अगर उससे नीचे अगर तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर यह रहेगा कि मैं अपने स्कूल का स्टेट टॉपर क्यों नहीं बना। और हम भी अब स्टेट टॉपर के नीचे सोचते ही नहीं है, स्टेट टॉपर ही बनना है, एयर 1 ही आना है, रैंक 1 ही अपने क्लास में स्टेट में आना है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित हो चुका है और लक्ष्य को पूरा भी कर दिया। अब आगे, आज स्टेट टॉपर 2 है, अब दर्जन के भाव में चाहिए स्टेट टॉपर। तब बोलेंगे कि इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 12 बच्चे स्टेट टॉपर हो गए। इसी तरह का अपना लक्ष्य बनाएं। और मैं बार बार बताता हूं, आप इन बच्चों को, जो बच्चे जीतते हैं, अच्छा करते हैं परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, उनसे सीखें कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे सेल्फ स्टडी करते हैं। और मोबाइल को कसम खा लें, आज गणतंत्र दिवस के दिन आप ये संकल्प कर लें कि मम्मी पापा का मोबाइल अब मैं लेने वाला नहीं हूं, अपने सारे सॉल्यूशन खुद करूंगा। अब खुद नहीं होगा तो शिक्षक के पास जाऊंगा। और ये जो 1 क्लास वाले बच्चे हैं, ये तो खाना भी खाते हैं मोबाइल देख करके, उनका भूख मर जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो एंजाइम देगा भूख लगने के लिए,
कि ये लो बीटा जाइम, अरिस्टो जाइम और पता नहीं कितने जाइम है, यूनियन जाइम, खाओ। लेकिन अब तो कहानी दूसरा हो गया। पेरेंट्स जान गया ये मोबाइल जो है ना, ये सबसे बड़ा एंजाइम है। छोटे बच्चे को देता है, भूख लग जाता है, और मोबाइल नहीं देता है तो उसको भूख भी नहीं लगता है। पहली कदम, मम्मी मोबाइल दोगी ना तो देखेंगे तब खाएंगे। तो जाइम ही तो है, ये जाइम नहीं है, ये जहर है। इस जहर को अपने लाइफ से निकाल दें और एक अच्छा, मैं बता दूं, आप एक अच्छा पुत्र हैं, अच्छा अपने गांव के लड़के हैं, एक अच्छा नागरिक भी बनकर दिखाना है। ऐसा नागरिक बन के कि पूरे भारत को गर्व हो आप पे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार और लास्ट में, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पब्लिक मतलब होता है लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि देश में जो भी राज होगा वो लोगों का राज होगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो आप अपने अधिकारों को समझे, आप ये जाने कि जो मेन पावर है इस देश का, मेन सोर्स है यहाँ के सिटीजन है, नागरिक है, यानी आप है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, देश जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकता है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग खत्म करते हैं। बाहर आप लोगों के लिए मिठाई का प्रबंध किया गया है, आप लोग सभी लाइन से जाएंगे और मिठाई